Hello students, myself B.V. Gupta, PGT Chemistry, Department of Education, Haryana. Welcome all of you on this EduSet program. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास की यूनिट 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. Dear students, you must have studied about Mendeleev's in your previous classes. He arranged the elements in horizontal rows called periods and vertical columns called groups. Elements having similar properties were put in same group. He also predicted some undiscovered elements with gap in his periodic table. Eventually, these elements were discovered and have precisely expected properties. Now, we have metals, metalloids and non-metals. In modern periodic table, the elements are arranged in the order of their increasing atomic number. As Moseley find that the frequencies of elements X-rays, the X-rays which are emitted by the elements is directly proportional to their atomic number. In other words, I can say that the atomic number is far more fundamental property as compared to atomic weight. That is why we arrange the elements in the order of their increasing atomic number rather than atomic weight. It gives modern periodic law, according to which the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic number. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करेंगे तो एक ग्रुप में आने वाली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी. इसी प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप देख रहे हैं, देयर आर 18 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स हैं 18 और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं विच आर कॉल्ड पीरियड्स. नाउ what is the reason that the elements lying in the same group have similar properties? क्या कारण है कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं? इसका रीज़न क्या है? दैट इज नोन एज कोज ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम हैं. आप देखें, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे लिथियम की तो यहाँ हीलियम के बाद 2s1, सोडियम में नियोन के बाद 3s1, पोटासियम में आर्गन के बाद 4s1 और इसी प्रकार से नीचे भी पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, you will see in their electronic configuration that all of them have one electron in their outermost shell. That is why they have similar properties. प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने टीचर्स की हेल्प से ये पीरियोडिक टेबल ज़रूर याद कर लें. इससे न केवल पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स की स्टडी पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को भी आप आसानी से समझ पाएंगे. आप देखें, इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है उसे अल्कली मेटल ग्रुप कहा जाता है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है. सेकेंड ग्रुप को अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं. फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल ग्रुप. फर्स्ट group of the periodic table is known as alkali metal group. Second group is known as
अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज कैल्कोजेंस, क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग ग्रुप है। इसका रीज़न ये है, कैल्को का मतलब होता है ओर। मोस्ट ऑफ द ओर्स of metals exist in the form of either oxides or sulfides, that's why it is called chalcogen. ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर ओशियन सी समुद्र में पाए जाते हैं इसलिए उनको हेलोजेंस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस। और 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज नोबल गैस, इनर्ट गैस रादर देन, क्योंकि वो फुलफिल्ड होते हैं मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ द ग्रुप। दिस पीरियोडिक टेबल इज फर्दर divided into the 4 blocks: S block elements. First and second group of the periodic table belongs to S block because their last electrons enters into the S subshell. Group number 3 to 12, they belongs to group number 3 to 12 belongs to D block elements, which are also known as transition elements. Group number 13 to 18, they belongs to P block elements. P block elements. Collectively, the S block and P block elements, they are known as representative elements. S block and P block elements, they are known as representative elements. Group number 3 to 12, D block element, generally they are known as transition elements. However, the group number 12, zinc, cadmium and mercury, they belongs to D block but they are not transition elements. You will study these concepts in your further 12th class. Why these elements are D block elements but not known as transition elements? One thing is very important in this periodic table. The atomic number 57 is followed by 72. It means the atomic number 57 to 71, lanthanum is there, but after the lanthanum the elements are arranged below the periodic table because their last electrons enters into F block elements. F block, they belongs to F block. Their last electrons enters in the F orbital. That's why atomic number 57 to 71 and 89. After 89 it is 104. Means atomic number 90 to 103 again are found missing from the periodic table and are arranged below the periodic table. इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में 57 से 71 and after the 89, that is actinium to 103, they belongs to 5f, but both are f, that's why they are called F block elements. They are also known as inner transition elements. Inner transition elements, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। S block element, P block elements, D block elements, F block elements। और ये किस आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है? जिस सब शेल में उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही एलिमेंट का ब्लॉक होगा। अगर हम मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, now the last electrons, valence electrons of magnesium enters in the S subshell.
It means it is an element of s block. On the other hand, nitrogen having atomic number 7, 1s2, 2s2, 2p3. Last electron of nitrogen enter in p subshell. It means it is an element of p block. Collectively, S and P block elements are known as representative elements, D block elements are known as transition elements, and F block elements are known as inner transition elements. Now, what is their general electronic configuration? For S block elements, all the elements belonging to the S blocks are metals and their electronic configuration NS1 to 2, where N represents outermost shell. जो बाह्यतम कक्ष है उसको यह रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा पीरियड भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में N की वैल्यू क्या होगी? 1। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। लिथियम इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड तो उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगा। सोडियम में 3s1 होगा, पोटासियम में 4s1 होगा। तो ये जो n है ये पीरियड की संख्या से भी आप समझ सकते हैं। जो उसका पीरियड है, फोर्थ पीरियड है तो 4s1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट 5s1, 6s1, 7s1। सेकेंड ग्रुप में 1 की बजाय 2 हो जाएगा। दो ही ग्रुप हैं एस ब्लॉक में तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS1 to 2। इसी प्रकार से P ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 NP 1 to 6। देयर आर 6 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 13 to 18। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप एक विशेष बात का ध्यान देंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ लास्ट शेल में नहीं जाता, बल्कि पेनल्टीमेट शेल में जाता है, लास्ट से पहले वाले में। यानी उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। इसी प्रकार से F ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में भी नहीं जाता, बल्कि उससे भी पहले वाले में एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाता है। उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? N-2 F 0 to 14 N-1 D 0 to 1, while NS2 N is the outermost shell, D is N-1 D, F N-2। अगर यहाँ पर 7s है तो D कौन सा होगा? 6D होगा, और F कौन सा होगा? 5F होगा। यानी ये 5F जो कि एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक्टेनोइड्स। लेंथेनम इज द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 57। दैट्स वाई द एलिमेंट्स आफ्टर द 57 दे आर कॉल्ड लेंथेनोइड्स। लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं 14, उन्हें लेंथेनोइड्स। एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्टेनोइड्स कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस प्रकार पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉक के बारे में, तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस किसी सबशेल में एंटर करेगा वही उसका ब्लॉक होगा। मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखें तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में एंटर किया है, तो ये एक s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ब्लॉक बताना तो बहुत आसान है, जिस किसी ऑर्बिटल या सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। पीरियड की संख्या हमें यहाँ से पता लग जाती है।
जो आउटर मोस्ट शेल होता है वही उसके पीरियड की संख्या होती है। अब मैं कह सकता हूँ कि सोडियम इज एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। हम चेक करते हैं, फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड ये है, थर्ड पीरियड में आप देखें सोडियम इज प्रेजेंट देयर। अब ग्रुप की संख्या कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप की संख्या के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। अगर वह एलिमेंट एस ब्लॉक का है, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वही उसके ग्रुप की संख्या होती है। ये बात किस पर लागू होती है? सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। आपको अपनी तरफ से 10 ऐड करना पड़ेगा, ग्रुप की संख्या आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। अब ये पी ब्लॉक का एक एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में, सेकंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, तो इसमें आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 में आप 10 ऐड करेंगे तो इसकी ग्रुप की संख्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अर्थात ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट ऑफ 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसी प्रकार से डी ब्लॉक के लिए ग्रुप का कैसे पता लगेगा? जो n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करें वहां n इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट s ब्लॉक में m इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n प्लस m, ये दोनों चीजें आप जोड़ दें, जो d सब शेल में और आउटर मोस्ट s सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रुप की संख्या आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वील स्टडी सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, और उसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। प्रिय विद्यार्थियों, एटॉमिक रेडियस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के ऊपर बहुत दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड करती है। हालांकि एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए एक बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है कि एटम एक स्फेरिकल स्पीसीज है और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो एटम का रेडियस उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को एटम का रेडियस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक डिफ़िकल्टी है कि एटम का रेडियस इस प्रकार से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नोबल गैसेस को छोड़कर आप देखेंगे नोबल गैसेस का तो एटम्स का एग्जिस्टेंस है, लेकिन उनको छोड़कर कोई भी एटम एज ए एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए एटम का रेडियस इस प्रकार से कहा तो जा सकता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वाले शेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होता है, लेकिन इसको सिग्निफिकेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता। इस कारण से एटम का रेडियस अलग अलग तरीक़ों से डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियस। जिन एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर कर बॉन्ड बनाया है, जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर का हाफ डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एटम का रेडियस क्या कहलाएगा? हाफ ऑफ ए बी, यानी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के हाफ को एटम कोवलेंट रेडियस कहते हैं। जिन एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है,
ये कोवलेंट रेडियस कहलाता है। अगर किसी मेटल के लैटिस में आप देखेंगे तो मेटल के लैटिस में अगर कोई मेटल के एटम्स बॉन्ड बना रखे हैं, उनके न्यूक्लियस के सेंटर्स के डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? मेटेलिक रेडियस। और किसी गैस में जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के सबसे नज़दीक हैं, ये भी H2 मॉलिक्यूल है और ये भी H2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस को वंडरवाल रेडियाई कहते हैं। यानी ये वंडरवाल रेडियाई मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजरमेंट करता है। तो ये 3 तरीके हो गए मैंने जो आपको बताए। नंबर 1 कोवलेंट रेडियाई, नंबर 2 मेटेलिक रेडियस, नंबर 3 वंडरवाल रेडियाई। इन तीनों में वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मेटेलिक रेडियस और सबसे छोटा है कोवलेंट रेडियस। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अलोंग ए ग्रुप और पीरियड किस प्रकार से ये वेरी करता है। आयोनिक रेडियस 2 प्रकार का हो जाएगा, एक कैटायन और एक एनायन। नाउ विल सी हाउ दीज रेडियाई एटॉमिक साइज vary in the periodic table. As we proceed downward, atomic size increases because of addition of new shell. As we move left to right along a period, atomic size decreases because we fill electrons in the same shell, but number of protons, that is nuclear charge, increases. This means atomic size increases on this way. Ionic radii is little different. Electrons repel each other. Addition of electrons make it bigger, while taking one away make it smaller. Ions with same electronic configuration, ionic radii decreases as atomic number increases. Next property है ionization enthalpy. What do you mean by ionization enthalpy? The minimum amount of energy required to remove most loosely bound electrons from an isolated gaseous atom. अर्थात किसी गैसियस एटम से जो आइसोलेटेड है, जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, सोडियम का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, गैसियस है। अब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। आउटर मोस्ट सेल में से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, और यू कैन से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में से अगर आप देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो यह इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यह एटम आयन में बदल जाएगा। दैट्स वाई दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी प्रकार अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ बातों से ये थोड़ा क्लियर समझा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी चाहिएगी उससे कहीं ज़्यादा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिएगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इवन ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इफ एटम अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में ह्यूज जंप देखने को मिलेगा।
और अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एटम का ग्रुप प्रिडिक्ट करना हो केवल आयनाइजेशन एंथैल्पीज को देखकर तो हम आसानी से कर सकते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक एटम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 570 किलो जूल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 11,810 kilojule per mole. Now you have to predict which group it belongs to. यह एलिमेंट A कौन से ग्रुप से है? तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का ही कोई एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट दूसरा मैं लेता हूँ जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सपोज करें 810, 1140 and now it is 10,450 kilojoule per mole. All these ionization enthalpies are given in kilojoule per mole. अब फर्स्ट से ज़्यादा है सेकंड, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सेकंड और थर्ड में आप देखें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और निश्चित तौर से वह सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। और अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बहुत ज़्यादा है इन थाउजेंड्स ऑफ किलोजूल पर मोल, इट मस्ट बी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बहुत ज़्यादा होगी। वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? बेसिकली देर आर सम फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। पहला है एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि जितना साइज अगर बड़ा होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। अगर ये एटम A है और ये एटम B है तो B की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। प्रिय विद्यार्थियों, एटॉमिक साइज के अलावा दूसरा जो मेन फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हायर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, higher will be the force of attraction between the nucleus and outermost electron, and it requires huge amount of ionization enthalpy, higher amount of ionization enthalpy. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, एल्यूमिनियम +3, नियोन, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। आप देखेंगे कि इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्युमिनियम में +3 है, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। +3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी प्रकार मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और सभी में आप देखेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या में अंतर है। 13 प्रोटॉन्स एल्युमिनियम हैव, while on the other hand magnesium have 12, sodium have 11, neon have 10, fluoride ions have 9 protons, oxygen have 8 protons, and nitrogen have 7 protons. It means higher the number of protons, higher will be the nuclear charge. So it requires higher amount of ionization enthalpy.
in this order. So higher the nuclear charge, higher will be the ionization enthalpy. There are more factors on which ionization enthalpy depends, like penetration effect. Third one is penetration effect. पेनिट्रेशन इफेक्ट, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन S में से निकालना है या P में से या D में से या F में से, तो S वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि S ऑर्बिटल की शेप इस प्रकार की होती है कि इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा पेनिट्रेटेड किए हुए होता है एज कंपेयर टू P. P electrons requires even more energy as compared to D, and D electrons requires more energy as compared to F. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेरिलियम और बोरोन. बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, बोरोन की है 1s2 2s2 2p1. साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, लेकिन यहाँ बेरिलियम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो s ऑर्बिटल है, जबकि बोरोन में हमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है वो p सब शेल में से करना है. इसका अर्थ ये हुआ कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन बिकॉज ऑफ द हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल एज कंपेयर टू p. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर कोई एटम हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज विच आर नॉट हैविंग हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. प्रिय विद्यार्थियों, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और पता लगाएं कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. आपका आंसर आएगा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है क्योंकि वह एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है. प्रिय विद्यार्थियों, शील्डिंग इफेक्ट को भी इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि आप देखें कि एल्यूमिनियम और गैलियम, गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम में d ऑर्बिटल होता है जो भरा हुआ होता है जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है. इसी प्रकार से इंडियम और थैलियम में भी आप देखेंगे जो ट्रेंड है वो रिवर्स है, वो शील्डिंग इफेक्ट. दीज आर 5 फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स. द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द एटॉमिक साइज. Ionization energy in case of francium is very low because the electron to be removed in its outermost shell is very far away from nucleus as it has very larger atomic size. So it is very easy to remove electron in case of francium, and after losing electrons it becomes fulfilled, so it has very low ionization energy. On the other hand, helium, which has only 2 electrons in its outermost shell and the electrons to be removed is very close to the nucleus. It requires very high ionization energy because the nuclear charge is very high. Ionization energy increases up and right. Gases have fulfilled electronic configuration. Electron affinity increases on this way. Fluorine have highest electron affinity as it requires only one electron to become fulfilled, like neon. These elements, S block elements, do not have tendency to gain electrons. They will rather lose it. मतलब मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की होती है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन दिस वे. फ्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज इट हैज़ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट. हाउएवर क्लोरीन हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन. प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा है अब उसके ऊपर आधारित कुछ होम असाइनमेंट की बात कर लेते हैं जो आपको खुद ट्राई करना है. नंबर 1, प्रिपेयर ए वेल डिफाइंड चार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सर्च द एलिमेंट फ्रॉम योर पीरियोडिक टेबल. ए मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सेकेंड, द मोस्ट
electronegative element. Third, the most electropositive element. Third question है, give reasons. Nitrogen have higher ionization enthalpy than oxygen. Why? Second, beryllium have higher ionization enthalpy than boron. Chlorine have more negative electron gain enthalpy than fluorine.